friends, welcome to my channel, a channel that's simply dedicated to your preparation for class 8, 9 and 10. Today I will discuss a very important questions, that is why Gandhiji choose salt as symbol of his protest in civil disobedience movement. जो बेसिकली आपके क्लास 10 हिस्ट्री का एक चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया जो चैप्टर है उसका एक सवाल है. फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, in the year 1930 on 6th April, Gandhiji break the salt law by making salt on his own hand and started the civil disobedience movement, which actually marked as a watershed in freedom struggle of India actually. Now the question is, why did Gandhiji choose salt as his symbol of protest? Because salt at that time not a serious issue facing by Indian people under British rule. There are numerous issues, be it social issues, be it economic issues, lots of issues. Then why Gandhiji choose salt? Why Gandhiji use salt as a symbol of protest? Yes, my friend, there was several reason behind it. Before starting the main part of this video, let me remind you one thing. You should always keep in your mind that Gandhiji always work on those things which actually a general issue, which actually general problem for the public. वो हमेशा इसी तरह के सवालात, इसी तरह के प्रोटेस्ट पर काम करते थे जो कहीं ना कहीं लोगों को जुड़ता है, जो कहीं ना कहीं पोर हो, रीच हो, इर्रेस्पेक्टिव कास्ट, रिलीजन, सबका प्रॉब्लम हो. जैसे कि हमने चंपारण सत्याग्रह में देखा, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन में देखा, और अब सिविल डिसऑर्डिनेंस में हम लोग देख रहे हैं. तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों को याद हो गया कि सॉल्ट कहीं ना कहीं ये लोगों को जुड़ने वाला एक चीज़ था. तभी गांधी जी इज यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट. नाउ कम टू द एक्चुअल पॉइंट, दैट इज फर्स्ट वन. सॉल्ट इज बेसिक फूड आइटम फॉर ऑल द रिच एंड पोर, irrespective of caste, creed, religion. Everybody use it. It has a great emotional and psychological value to every section of people. Well, that's a very good thing, friend. Gandhiji always feel that yes, it is a most basic and necessary food item, that irrespective of caste, creed, religion, poor, rich, whatever they are, they use it. So it has a great emotional and psychological touch. People will generally enclose themselves with it. So that's why he actually use salt as symbol of protest. I hope ये आपको clear हो गया, because it has a great emotional and psychological value. Second is, friends, according to Gandhiji, salt tax is most inhuman tax. Well, it hurts the basic rights of every Indian. Friends, earlier, before salt tax imposed on every Indian were used and making salt on his own hand as a tradition. But after the British era, actually they imposed such a tax, inhuman tax on Indian, which was a basic right to every Indian. But they abolished all these basic rights and imposed taxes on salt making and salt use. Okay, so ये कहीं ना कहीं जो बेसिक राइट्स थे इंडियन का, वो कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा था. इस लिहाज से गांधी जी ने सॉल्ट को चूज किया सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट के तौर पे. आई होप ये छोटा सा पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज इट वाज ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर पीपल लाइक पीपल ऑफ खेड़ा. पुअर पीपल जो थे, ये सोर्स ऑफ इनकम था. वो लोग खुद अपने हाथों से सॉल्ट बनाते थे, बेचते थे. ये एक इनकम था किसके लिए? पुअर पीपल लाइक खेड़ा, लाइक डांडी एंड ऑल द कोस्टल एरियाज, विलेजेस एंड सिटीज एक्चुअली. ओके, लेकिन ये बंद हो गया था आफ्टर इम्पोजिंग टैक्स or after acquiring the monopoly of salt production by British government. इसको कहीं ना कहीं गांधी जी बंद करना चाहते थे. I hope this part is also clear. Now fourth point is, by using salt, Gandhi ji actually bring the world attention to Indian problem. Okay, I think most important point of this question actually, Gandhi ji raised the voice to the world platform by making the salt satyagraha, by making salt on his own hand. It actually bring the world attention to Indian problem. कि वो चाहते थे कि जो वर्ल्ड के लोग हैं वो देखे कि कैसे इंडियंस को उनके बेसिक राइट तक भी जीने का अधिकार नहीं है.
तो कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड अटेंशन बन गया था लोगों के लिए. Okay, I hope this point is also clear. Now, come to the fifth point, that is Gandhiji used salt as symbol of protest so that every Indian could empathize themselves with this cause. Well, my friend, as I told you earlier, this Gandhiji picked up those problems, those issues which actually relate to all sections of society, not the कैटेगोरिकली पोर या रिच या फिर मार्चेंट, ऐसे नहीं. वो चाहते थे हमेशा कुछ ऐसा जनरलाइज्ड प्रॉब्लम को लेकर काम करें जो कहीं ना कहीं लोगों को जुड़ता है, मासेस को जुड़ता है. जैसे कि सॉल्ट, ये हर किसी को चाहिए होता है और ये कहीं ना कहीं लोगों को एम्पैथाइज करने पर मजबूर कर देगा इसके कॉज को. लोग आके बहुत सारे जुड़ेंगे, लोग यूनाइटेड होकर इस आंदोलन में जुड़ेंगे और ये सक्सेस भी होगा इस तरीके से. तो आई होप ये 5 पॉइंट बहुत आसान है. पहला पॉइंट था कि सॉल्ट वाज ए बेसिक फूड आइटम. ये कहीं ना कहीं एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल टच देता है लोगों के ऊपर, उन्हें जुड़ने पर मजबूर करता है और इंस्पिरेशन भी जगाता है लोगों को. सेकंड इज, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, सॉल्ट टैक्स इज मोस्ट इनह्यूमन टैक्स एंड इट हर्ट्स द बेसिक राइट्स ऑफ एवरी इंडियन. दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर. नाउ थर्ड इज, it was source of income for the poor people like Khera, Dandi and all the coastal region. Now it hurts when British government imposed salt tax and acquiring salt monopoly, salt production monopoly, and they actually lost their job. Who lost their job? Poor people lost their job. Okay. Now fourth is, by using salt, Gandhi ji actually bring world attention to the Indian problem. ये पार्ट भी आप लोगों को क्लियर हो गया कि वर्ल्ड अटेंशन को, दुनिया के लोगों को दिखाना चाहते थे कि किस तरह ब्रिटिशर्स एक्चुअली हर्ट इंडियन बेसिक राइट्स. ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया. ना फिफ्थ पॉइंट इज, गांधी जी यूज सॉल्ट सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट सो दैट एवरी इंडियन कुड एम्पैथाइज देमसेल्फ विद दिस कॉज. वो खुद से महसूस करे कि ये हमारा प्रॉब्लम है, इससे हमें जुड़ना चाहिए, और तभी जाकर आंदोलन यूनाइट तरीके से मास मूवमेंट बनेगा, नेशन वाइड मास मूवमेंट बनेगा और ये कहीं ना कहीं विक्ट्री भी हासिल होगा. तो ये था छोटा सा पार्ट आप लोगों का. आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया. फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिकॉज कंसेप्ट इज एवरीथिंग. वंस यू बिल्ड अप योर कंसेप्ट, योर 80% जॉब डन. देयरआफ्टर यू कैन जस्ट गो थ्रू योर बुक ट्वाइस और थ्राइस. यू विल बी अनस्टॉपेबल. आपसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा. जी हाँ दोस्तों, फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया. मैं ऐसे ही छोटे छोटे सवालात ले आऊँगा. अभी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट. चाहे को वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, मैं भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे ही मैं ले आऊँगा एक एक करके, ताकि आपको समझने में और आपकी प्रिपरेशन में बहुत बेहतर हो. सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलते रहे, आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहे. और एक बात, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक्स देना आपकी मर्जी. तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड शब्बा खैर.